Hello, everyone. Very good evening and very warm welcome once again to An Academy, that is India's largest online education portal. Once again, right? So today's topic, what it is? चलिए शुरू करते हैं ना एक पॉइंट से. Are you a Kannadiga? Are you a person who is the domicile living in the state of Karnataka since last 15 years and you speak Kannada as well? Then it's a wonderful news for you, right? So अगर आप एक कन्नड़ इंसान हैं, so sorry I don't know Kannada language, okay, but still it's a very wonderful language, very sweet language, and the people they are means wonderful when it comes to hospitality, right? So if you are a person that is known as the Indian but residing in the state of Karnataka, that is Kannadiga if you are, then this session is for you, right? So पूरी न्यूज क्या है वो देखते हैं यहां पर. That is the Karnataka government to mandate inclusion of 50 to 75% Karnatakas in private jobs. The cabinet has approved the bill. So a round of applause for the Karnataka government in providing the employment opportunity to the local people. See, many of you might be thinking ki it's kind of a discrimination or might be not correct with regard to the federal structure of the nation or the union structure of the nation. But yes, when it comes to providing the growth opportunity, the employment opportunity to the local masses, such types of enactments, they are badly needed. And this is what the state of Karnataka, the government of Karnataka has done that. So a huge round of applause and yes, salute to the government like that, right? Okay, so what we can see here, the bill covers entire private sector in Karnataka, entire, including the IT sector, and it will be tabled in the current assembly session. देखो जैसे ही न्यूज बाहर आई ना, कर्नाटका के अंदर स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट द बेंगलुरु, the city of Bengaluru, it is having nearly data which tells us 5 lakh startups working inside the city of Bengaluru. So many of the startup owners, the directors, the CEOs, and so on, the management of the companies, they are now bit troubled. क्या होगा हमारा आगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अब सडन जो एक शिफ्ट करना पड़ेगा, एक चेंज करना पड़ेगा एम्प्लॉयज में, वो कैसे होगा? और होगा तो होगा, चलो कैसे होगा, समय तो थोड़े टाइम पीरियड के अंदर हो जाएगा, बट उसकी वजह से जो एक टर्मोइल क्रिएट होगा वर्किंग प्रोसीजर के अंदर, कंपनी की प्रोडक्टिविटी के अंदर, इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम इट विल बी कवर्ड, ऐसा नहीं है, ओके, बट इमीडिएटली तो एक छोटा सा बैकलैश उठाना पड़ेगा. तो इस चक्कर में जो स्टार्टअप ओनर्स हैं या कंपनी हैं जो बेंगलुरु सिटी के अंदर या कर्नाटका में कहीं पर भी स्टैब्लिश्ड हैं, तो उनको लेकर एक छोटा सा कंसर्न, छोटा सा नहीं, एक अच्छा खासा कंसर्न जरूर पैदा हुआ है. हाँ, शॉर्ट रन में ये सबको शायद थोड़ी सी तकलीफ देगा, बट इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू द कन्नडिगा पीपल, स्पेसिफिकली द लोकल एम्प्लॉयमेंट विल enhance, and apart from that the economy will enhance as well, and ultimately it will strengthen the circulation of, yeah, strengthening of the economy throughout the country, right? So दिस बिल विल कवर द एंटायर प्राइवेट सेक्टर. ध्यान रखना है ये बात. और आगे की बातें क्या बताती हैं? सो मिस्टर सिद्धरामैया, the chief minister of the state of Karnataka presently, who has given this statement in his political manifestos as well during the campaign of his elections, right? So he has fulfilled the task, and as we can see here, in a move to prioritize Kannadigas in the state, the Karnataka cabinet has approved the draft state employment of the local candidates in industries as well as the factories and so on, and which will mandate the reservation of 50 to 75% of the jobs, okay, in the non-management jobs as well for the Kannadigas. And the bill covers entire private sector, including IT and so on, right? So what we can see here, the bill highlights the penalty. ओके, बिल क्या कर रहा है? पेनल्टी भी हाईलाइट करके दे रहा है उन कंपनीज के लिए जिन्होंने इन प्रोविजंस को अपनाया नहीं. यानी कि जो आगे अभी ये बिल अभी अब इंप्लीमेंट होगा, ध्यान रखना भी बिल है, एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है. अभी जो प्रेजेंट ऑनगोइंग सेशन है कर्नाटक असेंबली का, उसमें ये जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद पेनल्टी इंपोज होगी अगर नहीं माना बिल के प्रोविजंस को. तो क्या है पेनल्टी? आइए देखते हैं. ओके, पेनल्टी फॉर कंपनीज दैट डू नॉट प्रायोरिटाइज द कन्नडिगास फॉर द जॉब्स इन द स्टेट, और 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना, फाइन जो है लगाया जाएगा on those companies that do not follow the provisions in the bill. And further,
100 rupees will be collected every day until the local employer count is as per the bill. तो पहले तो 10 से 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा और 100 रुपीज पर डे भी लगाया जा सकता है आगे, जब तक कि ये 50 to 75% तक का जो कैटेगरी है, ये जो डेटा है, ये जो फिगर है, ये जो मार्क है, इससे अचीव नहीं किया कर लिया जाता. राइट. सो द लास्ट पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस, हु इज अ लोकल कैंडिडेट ऑफ कर्नाटका. तो क्या जो कन्नड़ लैंग्वेज बोल रहा है वो कन्नडिगा हो गया? शायद सही डेफिनेशन नहीं है, नॉट सो करेक्ट डेफिनेशन, राइट. कि अगर मैं हिंदी बोलता हूं तो मैं हिंदुस्तानी हो गया, ऐसा नहीं है ना. कि लैंग्वेज कोई भी कभी भी कहीं पे भी सीख सकता है, लेकिन टॉकिंग अबाउट योर एक्चुअल डोमिसाइल, तो वो क्या है? ठीक है, आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदुस्तानी हूं. आई स्पीक कन्नड़, मैं हिंदुस्तानी हूं. आई स्पीक तमिल, मैं हिंदुस्तानी हूं. आई स्पीक मणिपुरी, आई स्पीक असमीज, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलयालम, मैं हिंदुस्तानी तो हूं ही. लेकिन बात आती है मेरे लोकल डोमिसाइल की, मेरे एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेट की. तो वो कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जानने से किसी स्टेट की नहीं, आप उस स्टेट के नहीं हो जाते. तो बिल के अंदर जो प्रोविजंस डाले गए उसमें क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट बिल, स्पीकिंग कन्नड़ा डज नॉट मेक वन अ कन्नडिगा, and to qualify a person must have been domiciled in the state for 15 years, right, और pass a nodal agencies test. तो यानी कि कन्नडिगा लैंग्वेज तो आप, कन्नड़ लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए. साथ ही साथ कर्नाटका रीजन के अंदर आप अगर लगातार 15 साल से रह रहे हैं तो जाकर आप कन्नडिगा कहलाते हैं, और एल्स आप कैटेगरी में नहीं आएंगे. ध्यान रखना आपको इस बात का. So establishment can apply for exemptions and the government will allow some relaxations under certain conditions. जैसे कि हो सकता है मैनेजरियल लेवल पर या एटसेट्रा लेवल पर हो सकता है लोकल पॉपुलेशन में उतने एलिजिबल लोग हो ही ना. मे बी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है. पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो लोग इधर उधर कहीं काम कर रहे हैं, या हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर काम कर रहे हैं या दूसरी कंट्री में भी जाकर काम कर रहे हैं. तो लोकली जब बात आएगी फुलफिलमेंट ऑफ दी वैकेंसीज की, तो मे भी कहीं पर ऐसा हो सकता है कि उतने लोकल कन्नडिगा लोग अवेलेबल ना हो. उस केस में ओके, उस क्राइटेरिया को पास करने के बाद, उस एक पर्टिकुलर टेस्ट को पास करने के बाद, या उस एक पर्टिकुलर कंडीशन को पास करने के बाद, तब जो है किसी नॉन कन्नडिगा को वो पोस्ट दी जा सकती है, वो पोजीशंस, वो वैकेंसीज फिल की जा सकती है, बट ओनली आफ्टर कंसीडरिंग. Right? So what we can see here, however, all private firms must hire only Kannadigas for Group C and Group D blue collar jobs. ठीक है, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए तो एकदम क्लियर कर दिया गया है कि उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मुरव्वत नहीं है उसमें. आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कन्नडिगा लोगों को ही हायर करना. राइट. तो आपके ओपिनियंस इस पे क्या है क्या नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और ध्यान रखिएगा समथिंग बिग, समथिंग वेरी पॉजिटिव इज कमिंग फॉर यू विद अनअकैडमी प्लस. क्या है यहाँ पर? हाउ कैन आई स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट माई जर्नी, हाउ कैन आई कवर माई सिलेबस, हाउ टू आइडेंटिफाई माई गैप्स एंड इंप्रूव देम, एंड हाउ कैन आई ट्रैक माई प्रोग्रेस. सो वी आर कमिंग विथ द सोल्यूशन वेरी सून. और ध्यान रखना है आपको, उससे भी पहले आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं अनअकैडमी यूपीएससी समिट. तो जो पर्सनालिटीज हैं यहाँ पर आपके साथ, आपके समिट के अंदर कौन कौन होंगे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण सर. उसके बाद से हमारे पास होंगी सुहासिनी हैदर मैम, हु इज द एडिटर फॉर द डिप्लोमेटिक अफेयर्स ऑफ द हिंदू. फिर उसके बाद हमारे पास होंगे श्री नितिन गडकरी सर, हम जानते हैं द हाईवे मैन ऑफ इंडिया, हु इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट द नेम महेश मुरलीधर भागवत सर, who is the additional DG for Railways and Road Safety. And apart from that, we have got Mr. Yes Sir Dr. J. Radhakrishnan, who is a senior level bureaucrat, additional chief secretary of the government of Tamil Nadu. So these will be the people who will be there to provide you, to guide you in your preparation, in your journey, in your life, right? How to excel, how to succeed, and how to boost up your energy, how to fill the gaps of your deficiencies or any kind of the weaknesses, whatever you have, how to cover up those deficiencies and so on. So guys, please remember 20th and 21st of July, we have got the Unacademy UPSC Summit. It's absolutely free of cost. आपके लिए किया जा रहा है,
कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको, उसके लिए कोई फी नहीं पे करनी है, जस्ट रजिस्टर फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दैट्स इट। ओके गाइस, और ध्यान रखना है आपको, जो हमारा अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है 15 मंथ्स के लिए, अभी उसकी जो प्राइसेस हैं वो क्या चल रहे हैं, दैट इज 30,000 रुपीज, 29,999। बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्या करना है आपको, आपको यहां पर एक प्रोमो कोड लगाना है, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ओके, यू हैव टू जस्ट एनरोल विथ द प्रोमो कोड PMIAS, right? And on this 30,000 rupees you will get a flat 10% of discount. Okay, सो ये जो 30,000 है ये क्रॉस होके 10% माइनस होके ये लगभग 27,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, 27,000 रुपीज एग्जैक्टली। ओके, राइट, सो प्लीज क्विकली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपको पता है कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर। सो वी हैव गॉट द ग्रेट नेम्स, मृणाल पटेल सर फॉर इकोनॉमिक्स, we have got Sudarshan Gurjar sir for geography. We have got Siddharth Arora sir for polity and governance and international relations. We have got Madhukar Kotwe sir for CSAT, and we have got Prateek Naik sir for history. So these are the greatest personalities. You know it very well that these are the top educators for the concerned subjects for in their respective field. और आपको इनसे पढ़ना है तो आपको पता है क्या करना है, nothing. Just go ahead with the Unacademy Plus subscription. प्राइस यहाँ आपके सामने है, प्रोमो कोड यहाँ आपके सामने है, 15 महीने के लिए, फॉर 15 months of your preparation, right? These guys will be there to assist you, to support you, to let you convert your dreams into reality, right? So thank you so much guys for watching me here. See you all in the very next session. Bye bye, take care, Jai Hind.